Today we will start with our Vista's next lesson, which is the Tiger King. It is quite interesting, and this chapter relates with the kingdom of a king and why the king is known as, after that, why the king is known as to be the Tiger King. Clear? The Tiger King is written by Kalki. Clear? And we will start the lesson. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Zamidar General Khiledar Major Satyavagara Samahari Maharajadhiraj Vishwa Bhuvana Samrat Shri Jilani Jang Bahadur MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. Means the Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story, and his name is Zamindar General Khiledar Major Satyavagara Samhari Maharajadhiraj Vishwa Bhuvana Samrat Sir Jilani Jang Bahadur MAD ACTC or CRCK. This is the name of the Maharaj, and often the name is shortened to the Tiger King. Why the name is shortened to the Tiger King, we will know in this lesson. Clear? मतलब हम इस लेसन में ये समझेंगे कि इतना लंबा नाम था इनका और उसके बाद में वो नाम इतना छोटा क्यों हो गया. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Sukta bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. But there is no chance of its fulfillment. As Bharat said to the Ram about Dashrath, the Tiger King had reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. So, in this paragraph, the writer wants to tell about the Tiger King and how the Tiger King is known as the Tiger King. एंड जैसे कि इसमें क्या बताया है कि मतलब टाइगर किंग को क्यों टाइगर किंग बोला गया है ना, इतने बड़े नाम को इतना शॉर्ट करके क्यों बोला गया. लास्ट में टाइगर किंग मर जाता है ना. ये मतलब एक छोटा सा जिस्ट है कि कुछ ऐसे कंडीशंस हो जाती हैं जिसके कारण वो टाइगर किंग की डेथ हो जाती है ना. मीन्स ये राजा की डेथ हो जाती है. तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इसमें बहुत अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स भी यूज किए गए हैं और बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है ना. तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप लोग समझने की भी कोशिश करेंगे. Of his death is an extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers has foretold that one day the king would actually have to die. तो अब क्या है कि इसमें जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बताई है, मतलब इस टेल में आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा. क्यों? और वो भी इसके बारे में हमको लास्ट में पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ. और सबसे फैंटास्टिक चीज जो इस लेसन में हुई है, मतलब इस स्टोरी में हुई है, वो ये था कि जैसे ही वो किंग पैदा हुआ था उसी समय एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया था कि ये किंग एक बार आगे जाके मरेगा. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोग आगे चल के मरते ही हैं, है ना. लेकिन जैसे ही ये पैदा हुए थे ये किंग, तो तुरंत ही एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था कि एक दिन ये किंग को मरना है. The child will grow up to become the warriors of warriors, heroes of heroes, champions of champions. But they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. तो अब क्या है कि
ऐसा बोला उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कि ये राजाओं का राजा, हीरोज का भी हीरो, वॉरियर्स का भी वॉरियर रहेगा, बट फिर चुप हो जाते हैं एकदम से, है ना। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन मतलब जो भी जिस चीज को लेके वो लोग चुप हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या बात रहती है कि ये जिस बोलते हैं ना ऐसे सितारों में पैदा हुए हैं, अभी ये चल रहा था तो ये तारों में पैदा हुए हैं, ये राशि है वो राशि, तो उस टाइप के स्टार्स में वो पैदा हुए हैं कि आगे चल के इनको एक दिन मरना है ना। ये कौन बोला था? एस्ट्रोलॉजर्स बोले थे। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे पुराने जमाने में जैसे होता था ना कि पैदा हुए बच्चे तो तुरंत एस्ट्रोलॉजर्स के पास लेके जाते थे, फिर वो उनकी भविष्यवाणी करते थे कि हाँ ये इतने समय पैदा हुए हैं बच्चे, तो उस टाइप का इस किंग के साथ भी होता है। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jung Bahadur. Oh wise prophets! तो अब क्या हुआ? उसी समय एक अचानक से एक मिराकल हो जाता है, एक जादू हो जाता है कि वो जो 10 डेज का जो राजा है जो पैदा हुआ है 10 डेज का ही है, और वो उसके मुंह से क्या निकलता है? ओ वाइज प्रोफिट्स, कितने चतुर हो तुम प्रोफिट्स, है ना, कितने चतुर हो तुम। Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. है ना, तो सभी लोग अचानक से मतलब अमेज हो जाते हैं, अमेज टाइप के हो जाते हैं, तो एकदम चौंक जाते हैं। स्टुपिफेक्शन मतलब अमेजमेंट, है ना। तो अब एक दूसरे को देखते हैं, है ना, और सोचते हैं मतलब 10 डेज का बच्चा कैसे बोल सकता है। ओ वाइज प्रोफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। तो ये ओ वाइज प्रोफिट्स कौन बोला था? राजा। This time there was no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. The chief astrologist took off his spectacles and gazed intently at the baby. तो अब क्या हुआ? सब चौंक गए थे कि ये कैसे बोल दिया इसने, ये वर्ड्स कैसे बोले, अभी तो ये 10 डेज का ही है। तो सभी लोग एकदम चौंके हुए थे। जो बड़े एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपने स्पेक्स निकाले और वो देख रहे थे बेबी को एकदम ध्यान से। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. Now एंड रॉयल इन्फेंट मीन्स एक दूसरे शासक ने, जो छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है ना, इन्फेंट मीन्स छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनने क्या बोला कि वो तो सभी को पता है कि सबको एक ना एक दिन मरना है, आपका ये प्रेडिक्शन कोई काम का नहीं है। मतलब प्रेडिक्शन मीन्स क्या होता है कि पहले से कुछ चीज के बारे में बताना, है ना। तो ये आपका प्रेडिक्शन जो है ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो भी पैदा होता है उसको मरना ही है। लेकिन अगर आप उसका मैटर बताएंगे कि वो किस तरीके से मरेगा, क्या ऐसी सिचुएशंस होगी जिसके कारण वो मरेगा, तब कोई बात हो ना, तब तो हम माने कि आपका प्रेडिक्शन सही है। मरने का प्रेडिक्शन अगर आप देंगे तो वो तो सभी लोग मरते हैं। सो द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर्स ऑन हिज नोज इन वंडर। अ बेबी barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Rather like the bulletins issued by the war office than facts. So अब क्या हुआ कि वो तो सभी लोग समझ गए थे, तो जैसे चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपनी उंगली से जो न्यू बॉर्न बेबी था उसके नाक पे उंगली रखी, है ना, कि मतलब इतना छोटा बच्चा इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये तो यकीन ही नहीं हो रहा। इट्स इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स जो मतलब बहुत चौंकने वाली बात है, मतलब ऐसी चीजें जो जिसको अपन मतलब बिलीव नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजें दैट कैन बी बिलीव्ड कांट बी बिलीव्ड, है ना। तो ऐसी चीजें, तो मतलब ये अनबिलीवेबल था कि कोई इतना छोटा सा बच्चा इतनी सारी क्वेश्चंस कर रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर्स ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस। तो अब क्या है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने उसकी नाक से फिंगर हटाया और उसके बाद में उसकी आंखों में देख रहे थे। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। तो ऐसे बताते हैं आप लोगों को कि ये बुल आवर्स में पैदा हुआ है, तो इसकी राशि ये है
है ना, इस टाइप का बोलते हैं। कोई टाइगर आवाज में पैदा होता है, कोई शीप आवाज में पैदा होता है ना। तो ऐसा ही वो प्रिंस का क्या बताया कि वो बुल आवाज में पैदा हुआ है ना। उस समय बुल्स का वो चल रहा था, मतलब स्टार्स उस समय ऐसे थे, तो इसीलिए वो उस आवर में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। तो अब उन्होंने आगे क्या बताया कि बुल और जो टाइगर होता है वो दोनों एनिमीज होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सहन कर सकते। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। तो इसकी जो डेथ है वो टाइगर से ही होगी, ऐसा चीफ एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tiger beware. This account is only a rumor life in Pratibandhapuram. So after hearing these words, which is told by the chief astrologer, the king, the little infant, got deep growl, है ना, means वो बहुत लंबी सांस लेता है और कहता है कि मतलब टाइगर्स अब अवेयर हो जाओ आप लोग, मैं आ गया हूँ, इस टाइप का होता है ना। तो अब इसमें क्या है कि मतलब प्रतिबंधपुरम में कुछ होने वाला है ना। अब देखो ये क्या है, अब इसके आगे की जो स्टोरी है इसमें यही बताया जाएगा कि कैसे वो उन्होंने ये बता दिया कि उसकी डेथ टाइगर से होगी। तो ये स्टोरी में आगे बहुत अच्छे से आप लोगों को थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी रहेगा कि उसकी डेथ कैसे होती है ना। तो वो टाइगर, तो उसकी डेथ टाइगर के कारण ही होती है, पर कैसे होती है वो चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. तो अब क्या, धीरे धीरे वो राजा जो हैं वो बड़े हो रहे थे, है ना, आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं जैसा कि पहले बताया गया। मतलब उनके पैदा होने के बाद ही बताया गया कि इनको एक टाइगर के ही कारण इनकी मृत्यु आएगी, है ना। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown prince of all the other Indian states did. तो वो कैसे रहते थे, इंग्लिश काऊ का ही दूध पियेंगे, है ना, इंग्लिश नैनी ही लेके आती थी जो, अब इंग्लिश मूवीज ही देखते थे, इंग्लिश ट्यूटर ही उनको पढ़ाते थे, जैसे कि बाकी सभी प्रिंसेस के जो बच्चे होते थे, प्रिंस लोगों के जो बच्चे होते थे, वो बाकी सभी लोग भी इसी टाइप का इंग्लिश को प्रेफर करते थे। तो सेम एज इट इज वो भी अपनी लाइफ जी रहे थे, है ना, और बड़े हो रहे थे। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. तो अब क्या 20 ईयर्स के हो गए हैं वो, तो अब धीरे से ये कोर्ट का जितना भी मतलब सारी चीजें रहेंगी वो अब उनके हैंड्स में आएगी। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ears. तो अब क्या है कि धीरे धीरे अब उनको किंगडम मिल गया, अब वो बड़े हो गए, है ना। तो लेकिन सबके ध्यान में वो जो एस्ट्रोलॉजर्स का प्रिडिक्शन था कि इनकी डेथ हो जाएगी टाइगर के कारण, वो धीरे धीरे सबके आसपास में बातें होने लगी। अब जैसे धीरे से राजा बड़े हो गए, अब राजा के हाथ में सारी चीजें आ गई, तो अब सब लोगों को तो फिक्र होगी ही कि मतलब अब भाई राजा बड़े हो गए हैं, कहीं टाइगर आके इनको मार ना दे, है ना। तो धीरे से ये धीरे धीरे जो बातें थी ये सब के सब फैलने लग गई और वो राजा के कानों तक चली गई। There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. तो अब क्या था कि वहां पे बहुत जंगल हुआ करते थे प्रतिबंधपुरम में। तो टाइगर को अब जब जिस चीज से डर रहेगा तो उस चीज को तो खत्म ही करेगा राजा। तो उसने क्या किया, बोला कि टाइगर को मार दिया जाए। तो
अब धीरे धीरे करके टाइगर हंटिंग स्टार्ट हो गई. The Maharaja was thrilled beyond measures when he killed his first tiger. He sent for the state astrologers and showed him the dead beast. तो अब क्या हुआ, मरे हुए शेर को, मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने एक टाइगर को मारा और उसके बाद में उसने एस्ट्रोलॉजर के पास में भेजा उस टाइगर को, ताकि उनको पता चले कि हाँ देखो मैंने टाइगर मारा है, टाइगर ने मुझे नहीं मारा है. तो वो जो डेड बीस्ट मीन्स डेड जो टाइगर है उसको उन्होंने भेजा वहां पे. What do you say now? He demanded. Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. But the astrologer drawled. तो अब क्या है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बोलते हैं ऐसे ही आपको 99 टाइगर्स मारने हैं. ठीक है, ऐसे ही आपको 99 टाइगर्स मारने हैं और ऐसे ही सेम मैनर में जैसे अभी आपने मारा है ऐसे ही आपको मारने हैं. बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर. तो अब क्या है कि ऐसा बोल के चुप हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर. तो महाराज बोलते हैं कि आगे बताओ तुम क्या बोलना चाहते थे, रुक क्यों गए. बट यू मस्ट बी केयरफुल, वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर. लेकिन आप जब 100th वाला जो टाइगर मारेंगे उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है उसको जब आप मारेंगे. वॉट इफ द 100th टाइगर वॉज ऑल्सो किल्ड, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर. तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, मतलब राजा बोलते हैं कि अगर मैंने 100th टाइगर मार दिया तो क्या करोगे. ठीक है, सेम मैनर में मैंने 100th टाइगर मार दिया तो क्या करोगे. तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, अगर आपने 100th टाइगर मार दिया तो मैं अपनी पूरी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स जला दूंगा, है ना. टू देम एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ, crop my hair short and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. तो अब क्या है कि एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है मैं अपने बाल भी शॉर्ट कर दूंगा. चुफ्ट मीन्स क्या होता है, जो चोटी बनाते हैं ना ऊपर में छोटी सी, तो वो भी चोटी भी काट दूंगा और मैं अपने बाल शॉर्ट करके क्या बन जाऊंगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. ऐसा एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं और अपनी बात को खत्म करते हैं. Yesterday we have discussed about the astrologers who has told that the king will die after some years, and if the prediction is not getting true, then he will cut off his tuft, crop his hair shorts and become an insurance agent. After that, from that day onwards, it was celebration time for all tigers inhabiting Pratibandhapuram. The state banned tiger hunting by anyone except the महाराजा. तो अब इसके बाद में क्या हो गया कि सभी लोगों को मना कर दिया गया कि कोई भी हंटिंग नहीं करेगा. ठीक है, कौन सिर्फ करेगा हंटिंग, महाराजा सिर्फ हंटिंग करेंगे. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. तो अब क्या बोला गया कि अगर कोई भी आदमी अगर एक पत्थर से भी अगर टाइगर को मारता है तो भी उसकी पूरी प्रॉपर्टी और उसका पूरा पैसा, सारी चीजें सीज कर दी जाएगी. कन्फिस्केटेड मीन्स सीज कर दी जाएगी. द महाराजा would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially the king seemed well set to realize his ambition. Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leaped upon him and fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. तो अब क्या है कि महाराजा ने यह भी अनाउंस कर दिया था कि अब जब तक मैं 100 टाइगर्स नहीं मार लेता तब तक कोई भी और भी मैटर्स मेरे सामने नहीं आएंगे, है ना. तो अब उनका एम्बिशन क्या बन गया था, बस टाइगर के लिए. तो कई बार मतलब डेंजर्स को भी फेस करना पड़ता था उनको, है ना. तो कई बार वो हाथ से भी लड़ते थे टाइगर्स के साथ, लेकिन अभी तक जितने भी उन्होंने टाइगर्स मारे थे मतलब हर जगह पर वही जीते थे, टाइगर नहीं जीता था. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थॉर्न. A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shoot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can't organize any other hunting.
यू मे गो ऑन अ बोर हंट। ठीक है, तो अब क्या हो गया था कि एक ब्रिटिश ऑफिसर आए थे वहां पर, तो उनको भी टाइगर हंटिंग बहुत पसंद था। तो वो क्या सोचते थे कि टाइगर हंट करके और उसके बाद मरे हुए बीस्ट के साथ में, मतलब मरे हुए टाइगर के साथ में वो फोटो खिंचाना चाहते थे। उनका ये एक हॉबी था। बट महाराजा ने तो अपने यहाँ के लोगों को भी मना कर दिया था टाइगर को मारने से। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ब्रिटिश ऑफिसर आएगा तो उसको भी नहीं मारने देंगे। तो उन्होंने इसकी परमिशन दी ही नहीं उस ब्रिटिश ऑफिसर को कि वो हंटिंग कर सके। उन्होंने और ऊपर से उनको क्या रिकमेंड किया कि आप बॉर हंट करो, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। तो बॉर हंट कर सकते हो। बॉर मीन्स जंगली सुअर होता है, उसको बॉर बोलते हैं। ठीक है, तो वो हंट कर सकते हो, माउस हंट कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। तो राजा क्या बोलता है कि मॉस्किटो हंट करो, माउस हंट करो, लेकिन टाइगर हंट तो नहीं, पॉसिबल नहीं है कि आप मेरे यहाँ पे कर सकते हैं। So the British officer's secretary sent words to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tigers. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officers turned up for टाइगर हंट? तो अब एक नेक्स्ट मतलब उन्होंने कुछ लेटर भेजा और क्या कहा कि ठीक है, अब हम लोग टाइगर किलिंग नहीं करेंगे, बट जो मरा हुआ टाइगर रहेगा जो आप ही मारे रहोगे उसके साथ एटलीस्ट हम लोगों की फोटोग्राफ हो जाए, है ना। तो महाराजा ने मना कर दिया। ठीक है, अब तो उसने अभी भी मना क्यों किया? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं एक भी ब्रिटिश ऑफिसर को अगर हाँ बोल देता हूं तो मतलब बाद में भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आएंगे, दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स आएंगे जो बोलेंगे मुझे कि नहीं, आपने उनको हाँ बोल दिया था तो हमें भी हाँ बोलो हंटिंग के लिए। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ। अब क्या हुआ, किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स का ओपोज करना, तो ये क्या होगा कि हमारे किंगडम को, मतलब हमारा किंगडम हमारे से छीन जाना, इस टाइप का ही होता है। तो एक ये डर तो हो ही गया था महाराजा को। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलिबरेशंस ओवर दिस इशू। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वाज dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Sent samples of expensive diamond rings of different designs. तो अब क्या हुआ कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो दीवान और महाराजा दोनों ने ये सोचा कि मतलब बहुत देर तक डिस्कशन चला, उसके बाद में ये सोचा गया कि हम ना ज्वेलरी खरीदेंगे। ठीक है, क्या किया गया, एक टेलीग्राम भेजा गया, एक ब्रिटिश कंपनी का बहुत फेमस ज्वेलर्स था उस समय कलकत्ता में, तो उसको एक लेटर भेजा गया और बोला कि बहुत महंगी से महंगी डिजाइन्स के कुछ सैंपल्स भेज दो रिंग के। Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officers. Good lady. The king and the minister expected the Duraisani to choose 1 or 2 rings and send the rest back. तो अब क्या है कि महाराजा ने कुछ 50 रिंग्स वहां पे भेज दी। अब इससे क्या हुआ कि उन्होंने क्या बोला, दुराइसानी को बोला कि तुम इसमें से सिलेक्ट कर लो कुछ रिंग्स और वापस भेज दो, 2 रिंग सेलेक्ट करके वापस पूरी रिंग्स वापस कर दो। Within no time at all, the Duraisani sent her reply, "Thank you very much for your gift." तो क्या है कि थोड़ा सा भी मतलब कुछ दुराइसानी को कुछ लगा नहीं और उसने क्या तुरंत ही क्या मैसेज कर दिया कि थैंक यू फॉर योर गिफ्ट्स। तो इससे क्या पता चला कि मतलब महाराजा ने अपने आप को बचाने के लिए एक तरीका खोज लिया कि मैं अगर डायमंड रिंग्स भेजूंगा और वहां ब्रिटिश ऑफिसर्स की गुड लेडी अगर मान जाएंगी तो वो उसी से खुश हो जाएंगी, तो महाराजा भी खुश हो जाएगा, तो उसको किंगडम उसके हाथ से जाने का जो सोच रहा था वो राजा, वो नहीं जाएगा। In 2 days, a bill for 3 lakh rupees came to the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakhs of rupees, he had managed to retain his kingdom. तो अब क्या है कि भले मतलब 2 दिन के बाद में 3 लाख का बिल उन लोगों के पास में आ गया, पर महाराजा इस चीज से खुश था कि भले उसने 3 लाख रुपए खर्चा किए लेकिन उसका किंगडम उसी के पास रहेगा, है ना, कोई भी उसका किंगडम नहीं हथिया सकता। Tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers
and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population became extinct in the forest of Pratibandhapuram. तो अब क्या हुआ कि महाराजा धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 100 टाइगर्स करने के लिए उनका जो टारगेट था वो पूरा होने के लिए आ ही रहा था। मतलब 10 इयर्स में उन्होंने 70 टाइगर्स मार लिए थे। पर अचानक ही ऐसा कुछ हो गया कि अब 70 के बाद में आगे बढ़ ही नहीं रही थी गिनती, है ना। मतलब आगे कोई टाइगर्स मिल ही नहीं रहे थे उनको मारने के लिए, क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम होने लगी थी प्रतिबंधपुरम से। Who knows whether tiger practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by the British hands alone. तो अब क्या है कि ऐसा सोचने लगे थे कि मतलब कहीं टाइगर्स हो ही नहीं रहे हैं क्या, पैदा ही नहीं हो रहे हैं क्या, पैदा ही नहीं हो रहे हैं क्या। तो और या तो ये भी हो सकता है कि वो लोग हेराकिरी मीन्स सुसाइड, कहीं वो लोग अपने आप से तो नहीं मर जा रहे हैं, है ना। तो और कुछ हो सकता है कि यहाँ से भाग जा रहे हों डर के मारे। तो ऐसा कुछ महाराजा सोच रहे थे। One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. तो मतलब क्या है, अपनी गन की तरफ देखते हुए एकदम अच्छे से अपनी गन को सामने दिखाते हैं और क्या बोलते हैं दीवान को कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब अभी तक 30 टाइगर्स बचे हुए हैं मेरी इस गन से शूट होने के लिए। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger? No, and I am not a gun. You are neither gun nor tiger. Diwan Sahab, I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. The Diwan began to bubble even more. तो अब क्या हो गया कि वो बोलते हैं, मतलब गन को दिखाते हुए बोल रहे हैं, तो उसको क्या लगता है दीवान को कि मुझे कहीं मारने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं टाइगर नहीं हूँ। तो राजा का ये कन्वर्सेशन के बाद में राजा क्या बोलते हैं दीवान को कि मैंने अभी ऐसा सोचा है कि मैं शादी करूंगा। योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू। तो राजा जब दीवान को बोलते हैं ऐसा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो दीवान क्या बोलते हैं कि मेरी ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं और मैं आपसे शादी, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। तो वो क्या बोलते हैं, मतलब ये नॉनसेंस जैसी बात मत करो, टाइगर बोलते राजा बोलते हैं कि ये नॉनसेंस जैसी बात मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मुझे तो टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, इफ यू लाइक मैरी द गन, a tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. The Maharaja gave a loud crack of laughter. तो अब क्या है कि दीवान ऐसा बताते हैं उनको कि आपके एंसेस्टर्स जो थे वो भी स्वार्ड से शादी किए, मीन्स अपना पूरा चीज स्वार्ड, मतलब बोलते हैं ना ऐसे कि हाँ मेरी तलवार ही सब कुछ है, इस टाइप का। तो वैसे ही आपके पूर्वज भी वैसे ही रहे हैं, तो आप क्यों चाहते हो कि आप टाइगर क्वीन को लेके आओ यहाँ पर। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट you may draw up statistics of tiger population in the different native states. Next you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. तो अब राजा ने क्या सोचा था कि जिस रानी के यहाँ पर, जिस रानी के साम्राज्य में ज्यादा टाइगर्स होंगे, उनके पास में बहुत अच्छा जंगल होगा और वहां पे ज्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन होगी, वहीं पे वो शादी करेंगे ताकि उनको टाइगर्स मिले। The Diwan followed his order. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. तो दीवान ने उनकी बातों को फॉलो किया और उन्होंने लड़की खोज के ले आई जिनके पास में बहुत सारे टाइगर्स हैं। Maharaja Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skin adorned to the wall of the reception hall in the Pratibandhapuram palace. तो अब क्या है, महाराज जंग बहादुर ने 5 to 6 टाइगर्स वो जब भी अपने फादर इन लॉ के यहाँ पे जाते थे वहां पर वो मार के आते थे। ऐसे करते करते उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए और उसकी जो स्किन थी उसको अपने पैलेस के सामने में लगा के रखे, रिसेप्शन हॉल पे। क्लियर।
The Maharaja anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He had this one thought during the day and the same dream at night, but this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed. If he would kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tigers hunting altogether. तो अब क्या था कि टाइगर्स वो मारते रहे तो 99 टाइगर्स कंप्लीट हो गए. अब जब 99 हो गए थे तो उसके बाद सबके अंदर में ऐसा रहता है कि भाई एक ही टाइगर बचा है, लास्ट टाइगर बचा है, तो वो भी मर जाए तो अच्छा हो जाएगा, फिर मुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस टाइप का रहता है. तो उनके फादर इन लॉ के किंगडम में भी एक भी टाइगर नहीं बचा था. तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक टाइगर भी मर जाए तो जितना जो भी कुछ था वो सही हो जाएगा. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर. व्हाट हैड द लास्ट लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड. तो अब क्या था कि एस्ट्रोलॉजर ने भी ये बोला था कि 100th जो टाइगर रहेगा उससे तुमको एकदम सावधान रहना है, केयरफुल रहना है. क्लियर. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी बिवेयर ऑफ द 100th. ट्रू इनफ. The tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it. But where was that 100th tiger to bear? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. तो अब क्या हो गया था कि टाइगर नहीं मिल रहा था, लेकिन टाइगर्स मिल्क जरूर मिल जा रहा था, लेकिन जिंदा टाइगर नहीं मिल रहा था. तो ये बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी महाराजा के लिए कि लास्ट उसको जो टाइगर था वो नहीं मिल रहा था. Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. तो अब क्या है कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन अचानक ही एक गुड न्यूज आती है कि वहां पे उन लोगों के जो हिली एरियाज है वहां पे जो विलेज में लोगों ने शीप पाल के रखे हैं वो शीप्स अचानक गायब हो रही है. It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. तो क्या है कि पहले तो ये सोचा गया कि कहीं ये दोनों जन तो नहीं खा ले रहे, क्योंकि इन लोग बहुत माहिर थे इस काम पे, शीप के काम. Surely a tiger